نواز شریف جنت میں بھی نہیں ملتے. نواز شریف جیسا آدمی صحیح ہے, یہ صحیح ہے, صحیح ہے, ایسا آدمی جنت میں بھی نہیں ملتا. آپ کو پتا ہے تو آپ کا کہنا ہے نواز شریف جنت میں نہیں لندن جائے گا. آپ کا کہنا ہے نواز شریف جنت میں نہیں جائے گا, پھر کیا پاکستان میں رہے گا؟ لندن میں جائے گا, لندن جائے گا, ادھر بھی نہیں رہے گا. لندن جائے گا. نواز شریف کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ بھی لیڈر ہیں. بھائی وہ کوئی لیڈر نہیں, گیدڑ ہے. ان کا نام ہی کافی ہے بھائی, میں کل ہی کافی ہے. اچھا, ہم پٹھان بھی ہے, پاکستانی بھی ہے, پشتو کے ساتھ ساتھ اردو بھی سیکھنی چاہیے. ہاں بالکل, اپریشیٹ, زبردست. اچھا, کیا کہنا چاہیں گے آپ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے؟ کیا کہنا میں چاہتا ہوں کہ اللہ ہمارے خان صاحب کو محفوظ رکھے, اللہ ان کو ہمت اور حوصلہ, جس طرح اللہ نے ان کو حوصلہ. یہ سو لوگ کہتے ہیں عمران خان کرپشن, عمران خان کی دبئی میں کوئی لیکس نہیں ہے. ان بغیرتوں کی لیکس دبئی میں بہت سے لیکس نکلے. ان کو یہی ڈر ہے کہ ان کے لیکس کیوں نہیں نکل آتا. ایک تصویر سے ان کا خوف ہے, پتہ نہیں کہ جب وہ وعدے کے بیس پر یہ کیا کہ ان کے آنے سے یہ باہر ڈرتے ہیں. تو آج تصویر پر بھی پابندی ہے. اچھا, تصویر میں بھی پابندی ہے. عمران خان جب خان صاحب کی ایک پکچر نکل آئی, ان لوگوں کی جو ہے دوڑے نکل گئی. جب وہ باہر آئے گا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اب یہ خان صاحب کے پیچھے باتیں کر رہے ہیں. سائفر کیس کے حوالے سے آج پیشی تھی, لائیو ٹرانسمیشن چلائی جانی تھی, آج کیوں نہیں چلی؟ ڈرتے تھے, ان کی فوٹو سے, ان کی سٹائل سے ڈرتے ہیں. ان کے نام سے ڈرتے ہیں, ان کا نام ہی کافی ہے ان کے لیے. ان کا نام ہی کافی ہے بھائی, میں کل ہی کافی ہے. اچھا, پنجابی میں کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی. تو مجھے یہ بتائیں, عمران خان رہا کیسے ہوں گے, یہ بتائیں. عمران خان نہ, ہم عدالتوں سے امید لگائے بیٹھے. جب یہ قوم تب تک جب نکلے گی تب خان صاحب باہر, اگر یہ قوم نہیں نکلتی تو خان صاحب مجھے نہیں لگتا یہ لوگ باہر نکالیں گے. تو کہوں کب نکلے گی یہ؟ ہم سب پٹھان کو ایک اتفاق ہونا چاہیے. یہاں پر یہ لوگ کہتے مہنگائی ہے, جب ہم سب مہنگائی, میں پی ٹی اے مجھے بھی ہے, یہ مسلم لیگ والے ان کو بھی پی ٹی اے کے ہیں یا پاکستانی مسلمان, مثال دے رہا ہوں. لیکن یہ ایک میں پی ٹی اے ہوں, یہ مسلم لیگ ہے. جب ہم سب اتفاق میں مہنگائی تو ہم سب کو اس میں پی ٹی اے مسلم لیگ. خان صاحب سے اتنی محبت کی وجہ کیا ہے؟ نہ ڈر ہے, بہادر, سچا ہے, ایماندار ہے, مخلص ہے. جو لوگ انہیں یہودی کہتے ہیں, یہودی, جو لوگ اس کو یہودی کہتے ہیں, اگر وہ یہودی نہیں ہے تو پھر وہ خود ایمان سے پاک لوگ ہوتے ہیں. ہاں, جو اس کو یہودی کہتے ہیں. یہ تو حدیث ہے نبی پاک کی, جو مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے, اسلام سے خارج ہے بندہ. یہ وہی عمران خان ہے کہ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر اور کہا, ان یہودیوں کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہا کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بستا ہے. جب ان کی شان میں تم لوگ گستاخی کرتے ہو ہمارے دل دکھتے ہیں, تم یہ نہیں کرو گے. وہ اس کے بعد گستاخی نہیں ہوئی. شہباز شریف نے تو اب عربی بھی سیکھ لی بھیک مانگنے کے لیے. اچھا, اس سے پہلے اقوام متحدہ میں جا کے کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں اسپیچ کی؟ نہیں, یاد کر لیں. یہ واحد عمران خان ہے. پکی بات ہے, پکی بات ہے, گارنٹی ہے میری. اس سے پہلے کسی نے اگر کی ہو؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ پہلا اور آخری بندہ تھا. انہوں نے اسامہ بن لادن کو بھی شہید کر, ان لوگوں نے اسامہ بن لادن کو شہید کر دیا. کہتے ہیں ہیلی کاپٹر ہے, انہوں نے ہمیں ہمارا ریڈار خراب تھا. ریڈار کیسے خراب تھا؟ تو نواز شریف کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ بھی لیڈر ہیں. 28 مئی کو انہوں نے, بھائی وہ کوئی لیڈر نہیں, گیدڑ ہے, گیدڑ ہے. ہاں, تو نواز بات سنیں, پٹھان کا ملیدہ سے یہ سڑیا بس کا زام آج کا شر جوڑا ہوئی دے دے. چھوڑو بس مشر ہے. لیڈر پر سکل تموایا ستا عمران خان عمرہ رزیل سڑیڑ اشتا دینا, ستا عمران خان عمرہ رزیل سڑیڑ اشتا دینا. تشخصی خواہی بے خیرت پڑوا انسان دے. کیوں بھائی, یہ کم والا ہے, یہ جگڑے والا آدمی ہے. عمران خان نے زمانہ کہنے جوڑ کر دے میں سڑی سیا ولی صحیح وہی کہنا. ہمارا بڑا ہے, بس چھوڑو. ورگا تھا من کو آئیو خانو دب بدی پینزه کالا کسی شی ثابت کر سی بی ثابت کر. یو خبر آورا مشرا آگا بس حساب وارے دا 35 کالا غمیانو وارے دا 35 کالا حساب ہوگی. جانگال تا سوک چلی ہوا تیوی دا گمر گری ہوئی. صحیح آدمی نہیں ہے پاکستان,
जन्नत में नहीं मिलते, नवाज शरीफ जन्नत में भी नहीं मिलते। उस नवाज शरीफ जैसा आदमी, सही है इंसान, ये सही है, सही है, सही है, ऐसा आदमी जन्नत में भी नहीं मिलता। नहीं मिलता। जी नाज़रीन गिरामी, एक मिनट, मैं चाहता हूँ जो लोग वे कहते हैं नवाज शरीफ, मैं चाहता हूँ अल्लाह उनकी हर औलाद नवाज शरीफ जैसा पैदा करे। नाज़रीन गिरामी, ये बुजुर्ग शायरी थे, इनका कहना यह था कि नवाज शरीफ जैसा आदमी जन्नत में भी मिलेगा। तो मैं एक मिनट, तो ये बुजुर्ग शायरी का कहना था। मुझे हैरानगी इस बात पे हुई कि नवाज शरीफ वाकई जन्नत में भी नहीं जाएंगे। क्या हैरानगी, मुझे हैरानगी इस बात पे हुई कि नवाज शरीफ वाकई जन्नत में नहीं जाएंगे। कि इनका कहना यह था कि नवाज शरीफ जैसा आदमी जन्नत में नहीं मिलेगा। जी हाँ, जन्नत में नहीं मिलेगा। मेरी बात सुन ले, जो भी है मेरा बात सुन ले। 5 साल की हिसाब मांगने वाले, पहले आप 35 साल का हिसाब दे, पर हम 5 साल के दे देंगे ना। हक बनते हैं पहले 35 साल वाले से पूछे, उसके बाद 5 साल वाले से पूछे। दूसरी बात है कि जन्नत की बात कर रहे हैं, वो अल्लाह और हमारा आपस की होती है। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ नहीं मिलेगा। नहीं, ये झूठ है। नहीं, वो कहते हैं जन्नत में जाएगा ही नहीं, मिलेगा नहीं। ये अल्लाह, ये कोई भी नहीं कह सकता इस तरह। मगर नवाज शरीफ जैसा आदमी ऐसा सच्चा लीडर है, खरा लीडर है, मगर जन्नत में नहीं मिलेगा। मैं एक बात है, जो लोग कहते हैं नवाज शरीफ अच्छा आदमी है, मैं चाहता हूँ अल्लाह उनको नवाज शरीफ जैसे औलाद नसीब करे। आपके ख्याल में जन्नत में जाएंगे नवाज शरीफ? ये हम नहीं कह सकते, लेकिन मौजूदा हालात में मौजूदा जो हालात है, जो काम कर रहे हैं ना, इसमें नहीं जा सकता, इसी पोजीशन में नहीं जा सकता। जो औरतों की किरदार कुशी कर रहे हैं, कभी इस तरह नहीं होगा। हमारे इस्लाम में, दीन में यही कि आप औरत को इज्जत दे। उसके जो निकाह इज्जत वाले केस है, इसके ऊपर जो इन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया, जो बेइज्जती की है, ये उसका आपस ज़ाती मामला था उन दोनों का। लेकिन हम लोग दुनिया में इसको इतना उछाला कि मुसलमान का ये शान नहीं है। शॉर्ट कट यही बात है। इद्दत केस कोई मसला नहीं है, घर में कुरान पढ़ा, सूरत तलाक खोले 27वें पारे में, तो वहाँ पता चल जाता है ये कितना मामूली मामला है, ये तो कोई मसला ही नहीं है। सूरत तलाक हर घर में मौजूद है। हदीस में है कि औरत ने कहा कि हमारी इज्जत पूरा हो चुकी है, वो गवाही काफी है। औरत ने जब कहा कि मेरी इज्जत मैंने पूरा किया, उसी औरत की, दूसरी की भी नहीं, उसकी गवाही काफी है। काफी है। ये हमारी दीन और इस्लाम हमें यही बताता है। बाकी जो हम दूसरों के ऊपर किरदार खुशी कर रहे हैं, मैंने जिंदगी में खुदा दी कसम जितनी 40-45 साल मेरी उम्र है, मैंने पहली बार देखा है कि इन लोगों ने बेगुनाह औरतों को गिरफ्तार किया, कोई कसूर नहीं है। एक केस से निकला दूसरे में, तीसरे से निकला तीसरे में फंसाया। झूठी केस है, सारी झूठी केस है। दूसरी बात, ये जो अलकादर ट्रस्ट वाली बात है, उसका पैसा सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा हुआ है। अल्लाह आपका भला करे। ये बोल रहा है कि वो इन लोगों ने जो उसमें करप्शन की है, किस तरह। और डैम जो बन रहे हैं उनका पैसा भी सुप्रीम कोर्ट इन्हीं के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो अवाम कहती है, लोग कहते हैं कि पैसा वो ऐसी जगह पे फेंक गया, इमरान खान ऐसे कुएं में फेंक गया, ये निकालते हैं तो इनके हाथ जलते हैं। तो अगर वो डैमों की मशहूरी देते हैं तो इनकी तौहीन होती है कि इमरान खान ने शुरू की। अभी रिसेंटली बात मैं आपको कर रहा हूँ, एटम बम किसने बनाया था? अब्दुल कदीर खान ने। अभी कल इन लोगों ने 36 साल बाद इनको वो आ गए, 22 साल बाद, सॉरी, या 26 साल बाद 26 साल बाद इनको छुट्टी याद आ गई है। वजह पहले नहीं आई। इमरान खान का साइबर वाला केस का मामला, जब वो जिंदा थे तब छुट्टी नहीं याद है। इसमें इन लोगों ने नवाज का तस्वीर लग गया, शहबाज का तस्वीर लग गया, मरियम का लग गया, जिसने बनाया अब्दुल कदीर खान का, उसका नहीं है, उसका तस्वीर नहीं है, कर दिया उन लोगों ने, उसका तस्वीर नहीं है। ये हमारा एहसान फरामोश कौम है, पाकिस्तानी कौम एहसान फरामोश है। अब्दुल कदीर खान ने गलती की कि इनको एटम बना के दिया है। इनके पास कोई कदर नहीं है, किसी भी जो अच्छा आदमी है, सच्चा आदमी है, उनका कदर हमारे पास नहीं है। वैसे आपको एटम बम का फायदा क्या है? हमारे जो आज हम इंडिया को जो हम दुनिया को धमकी दे रहे हैं ना, फखर है, जो दुनिया को धमकी जैसे एटम की बम की वजह से हम धमकी दे रहे हैं इंडिया को। इसको धमकी दी इंडिया वैसे ये हम बुज़दिल है बुज़दिल हम लोग, एटम हमारे पास है। फलस्तीन के हवाले से आपने धमकी दी है किसी को? फलस्तीन में इन लोगों जो ना हमारा अभी जो रिसेंटली क्या फायदा? यही तो कह रहा हूँ कि जो हुकूमत है नवाज की, ये जन्नत में नहीं गया, ये जन्नत में जाएगा नहीं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर फलस्तीन के झंडे पे जो पाबंदी, अगर आपने हाथ में खड़ा किया ना इधर, आपको पुलिस आके पकड़ लेता है। आपका कहना नवाज शरीफ जन्नत में नहीं जाएगा, फिर क्या पाकिस्तान में रहेगा? लंदन में जाएगा, लंदन जाएगा, इधर भी नहीं रहेगा। लंदन जाएगा, खत्म हो जाएगा, इक़्तिदार खत्म हो जाएगा, उसका घर लंदन में, पाकिस्तान में नहीं है। ये वाहिद इमरान खान है कि इस गरीब कौम के लिए जेल में पड़ा हुआ है। उसके पास न पैसे की कमी है, न दौलत की शोहरत की कमी है, हर चीज़ अल्लाह ने उसको दिया हुआ है, लेकिन हमारी खातिर। अच्छा, जन्नत अच्छी है कि लंदन अच्छा है? हम मुसलमान के लिए जन्नत अच्छा है, और जो
बाकी आपको पता है। तो आपका कहना है नवाज शरीफ जन्नत में नहीं लंदन जाएगा? यही बात, जाएगा। हाँ पक्का लंदन। दुनिया में जब जिंदगी उसकी है तो लंदन में है, मर गया तो फिर तो पता नहीं वहाँ पर भी उनके जहन्नम में उनके लिए लंदन तैयार किया हमारी हुआ। कौम की गैरत को हम सलाम करते हैं, जो अभी भी इसको अकल नहीं आई है। 150 पे जो लीटर था ना, ये धरने हो रहे थे, सारा इस टाइम आपको मेरा रोड माइक लोगों के मुंह में तुम दिया जाता था। अभी जब 300 से ऊपर चला गया, सारे माशाल्लाह खामोश है, अच्छा कोई भी नहीं बोल रहा। वजह क्या वजह इसकी? करप्शन है। करप्शन क्या आवाम भी करप्शन करते हैं? अवाम नहीं, जो बड़े कह रहे वो आगे जो मीडिया वाले में मेरे ख्याल पे सिर्फ न्यूज टीम मीडिया सारा बंद है। बंद है। अवाम क्यों नहीं मीडिया को बोलते? इश्तिहारों के ऊपर जितना पैसा दे रहा है ना, पहला इमरान खान के दौर में मैंने किसी मीडिया टीम को नहीं देखा उसने महंगाई के ऊपर हर एक जो और ये महंगाई। अभी नवाज शरीफ पीडीएम के पीछे जो पिछला जो 2 साल था उसमें और आज तक मीडिया की कोई बंदा मैंने देखा उसने पूछा कि महंगाई के बारे में किसी से पूछा है? देखा है किसी ने? नहीं देखा। और न वो पूछते हैं कि वजह पैसा मिल रहा है उनको, अगर किसी ने सच बोला दूसरे से उसको उठा लेता अच्छा है। आप आखिरी सवाल बताएं कि इमरान खान की रिहाई कब और कैसे होगी? ये तो अल्लाह ही जानता है कि कब रिहाई को, लेकिन इन लोगों के अगर इन जिस तरह आजकल अदालतों के पैसे इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन है? इमरान खान की रिहाई के लिए इमरान खान डरना एक बेहतर। अगर वो कैसे? डरना बेहतर। धरना नहीं, नहीं, अगर वो इसके साथ इनकी तरह जो डील कर रहे हैं तो फिर वो निकल सकता है, डील नहीं करता तो फिर मुश्किल है। इमरान खान डील करे तो फिर निकल सकते हैं। निकल सकता है, कल निकलेगा वो, लेकिन डील के लिए वो तैयार नहीं है। यार नहीं इसलिए डील के लिए वो तैयार नहीं है और ऐसे ये लोग छोड़ेगा नहीं। तो फिर आप कैसे उनकी आस लगा के बैठे हैं कि वो बगैर नहीं निकल आएंगे? मुसलमान जो वो उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ेगा। उम्मीद का दामन वो कभी भी नहीं, जो मुसलमान है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं, वो उम्मीद अल्लाह से हम लोग जो है वो रखते मगर हैं। आपको भी तो कुछ कोशिश कोशिश करनी हम पड़ेगी। यही कोशिश कर रहे हैं, जो हमसे कोई सवाल पूछे हम बोलेंगे सच बताएंगे, आप क्या कोशिश कर रहे हैं? सच बोलना। अगर हमसे कोई पूछे कि अमली तौर पे क्या कोशिश कर रहे हैं? अमली तौर पे इमरान खान की रिहाई के लिए अमली तौर पर हम जो है इतना कर सकते, दूसरे को दावत दे सकते हैं, हमारे आस पड़ोस मोहल्ले में, गांव में, जिले में हम बोल सके भाई निकलो हमारे साथ। मैं यहाँ सवाबी अमन चौक में खड़ा हूँ, यहाँ चंद ही मिनट की दूरी पे सवाबी अंबार बाबा जान होटल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इमरान खान की रिहाई के लिए धरना दिया है। क्या आपको पता है? मैं अभी तकरीबन हफ्ता डेढ़ में बाहर से आया हूँ। क्या आपको पता है? नहीं, मुझे अभी कुछ 2 दिन पहले पता चल गया। क्या आपको पता है? 2-3 दिन हो गया। क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? जी नाज़रीन, 3 माह से सवाबी अंबार इंटरचेंज, जी हाँ, असद कैसर के हलके, आकिबुल्ला खान के हलके, बाबा जान रेस्टोरेंट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पंजाब से आए, मुल्क के मुख्तलिफ अजला से आए, धरना दिया इमरान खान की रिहाई के लिए कि यहाँ इकट्ठे हों, फेडरल गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जाए, फिर इस्लामाबाद की तरफ निकला जाए, इमरान खान को रिहा करवा पाए। तो यहाँ के लोगों को ही नहीं पता कि 3 माह से इनकी बगल में धरना है, तो क्या होगा नाज़रीन? अल्लाह ही हाफ़िज़ है कि इसमें क्या कह सकते हैं। क्या आप उस धरने में शिरकत करेंगे? इंशाल्लाह कब? बहुत 2 दिन बाद 2-3 दिन बाद। क्या आप शिरकत करेंगे? इंशाल्लाह। क्या आप शिरकत करेंगे? इंशाल्लाह जब अगर आएगा इमरान खान के लिए जान हाजिर है। जान हाजिर है, जान तो मामूली बात है ना, वोट मामूली बात है, जान उनके लिए हाजिर है। जान हाजिर है, जान कीमती है। आप रोज का 1-2 घंटा निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, हम निकालेंगे। निकालेंगे। जी नाज़रीन गिरामी, सवाबी अमन चौक असद कैसर साहब का ये हल्का है कि असद कैसर खुद जलसे में उस धरने में तशरीफ ला चुके हैं। पिछले 3 माह से धरना जारी और सारी है। पंजाब से, मुल्क के मुख्तलिफ अजला से आए लोग धरने में दिन रात इस गर्मी में बैठे हैं। तो यहाँ के अवाम को, बाशऊर अवाम को ही नहीं पता कि यहाँ इनकी बगल में भी इमरान खान की रिहाई के हवाले से धरना दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, ये लीडरान में कोई कमी है या अवाम को बताने में कोई नाकस उतरा है? देखते रहिए, साथ रहिए सुबह टीवी के। इसके साथ मुझे दिया इजाज़त। एंकर शाहिर परवाना, सुबह टीवी, सवाबी। अल्लाह हाफिज़।